سول سوسائٹی نیٹ ورک پاکستان کے، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک تھینکس ڈاکٹر ظفر اقبال میاں صاحب، جنہوں نے ایک اچھی پروکار تقریب مس سائمہ اصغر کے اعزاز میں منعقد کی، اور ویلکم کرتے ہیں آن دی بہاف آف سول سوسائٹی نیٹ ورک پاکستان کی طرف سے اپنے معزز مہمان جناب محمد اسلم صاحب کو اور سائمہ اصغر صاحبہ کو، جن کی بدولت آج ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کام ہی ہمیشہ انسان کا بڑا ہوتا ہے، انسان بڑا نہیں بلکہ اس کا کام بڑا ہوتا ہے۔ تو آج جو پہچان ہوئی، ہمیں بڑی فخر ہے کہ ہمارے بھی سر فخر سے بلند ہوئے کہ یہ ڈاکٹر سائمہ اصغر صاحبہ جو ہیں، ان کے کام کی بدولت آج انہیں ایک انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنیشن ملی۔ یہ صرف سول سوسائٹی یا آئی سب کو نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی پوری کمیونٹی کے لیے باعث فخر ہے، اور ہمیں ایسے ستاروں کی ضرورت ہے جو اپنے مدد آپ کے تحت آگے بڑھے اور آج الحمدللہ پاکستان کا نام روشن کیے۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت ساری کمپریہنسو طریقے سے ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب نے گفتگو کر دی ہے، تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو مس سائمہ اصغر صاحبہ کی طرح آگے ملک میں آئیں، بڑھیں، اور نہ صرف انسداد منشیات کے لیے بلکہ ہم اپنے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے بھی، کیونکہ نہ صرف ہمارا جو کام ٹریٹمنٹ پہ ہے بلکہ ریہیبلیٹیشن پہ بھی ہے۔ تو ہم جناب اکمل ویسی پیرزادہ کی لیڈرشپ میں جو سول سوسائٹی نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے نوجوانوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ آنے والی ہم نوجوان نسل کو منشیات کی جیسی بے راہبری سے بچانا ہے، اور ایسے مواقع پیدا کرنے ہیں، کھیلوں کی طرف ہم نے ان کو لے کے آنا ہے، تعلیم کی میدان میں آگے ان کو لے کے آنا ہے، اور ایسی اپرچونیٹیز دینی ہے نوجوانوں کو جس سے منشیات جیسی لعنت سے ہم دور رہ کے اپنے کیریئر کو آگے بڑھائیں اور اپنے ملک اور وطن کا نام روشن کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں ڈاکٹر نازش، وہ بھی اس کچھ خیالات کا اظہار کریں۔ ان کا بھی کافی ویژن ہے، ڈرگ پریونشن اور کاؤنسلنگ پہ ایک عرصے سے کام کر رہی ہیں، تو ہماری سوسائٹی کا اور ہمارے ایون ادارے کی یہ وزٹنگ فیکلٹی ممبر بھی ہیں آنریبل، تو خیالات کا اظہار کریں گے ڈاکٹر نازش قدری۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں میڈم سائمہ کو بہت مبارکباد دیتی ہوں ان کی اچیومنٹ پہ، اور یہ سب میرے استاد محترم جو اتنا اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اپنے اپنے لیول پہ، ان کے لیے بہت اپریسیشن ہے۔ اور جتنا بھی کام اس ملک میں کیا جائے مجھے لگتا ہے کم ہے نشے کے خلاف، کیونکہ جتنا نشہ تیزی سے بڑھ رہا ہے بہت ضرورت ہے کہ ہم ہر لیول پہ ہر طرح سے جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں۔ تو میرا بہت ہی اپریسیشن ہے سر اسلم کے لیے، سر ریاض کے لیے، سر اکمل کے لیے، اور سر ظفر اقبال جنہوں نے یہ محفل سجائی اور یہاں پہ ہمیں آنے کا موقع دیا، ان کے لیے بھی میں بہت مبارکباد دیتی ہوں ان کے ریہیب پہ، اور انشاءاللہ جتنے بھی فیلوز میرے یہاں موجود ہیں ہم سب مل کے اس فیلڈ میں کام کریں گے اور کچھ بہتری اپنی طرف سے اس میں شامل کریں گے۔ شکریہ۔ تھینک یو۔ اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا ہماری پنجاب کی کوآرڈینیٹر نادیہ ذوالفقار، وہ اپنے خلاف کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مس سائمہ کو بہت بہت مبارک کہ بینگ اے لیڈی انہوں نے اتنی بڑی اچیومنٹ انٹرنیشنل لیولز پہ حاصل کی، اور ہم سب پاکستان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح کے ان کے خیالات ہیں، یہ جیسے جیسے وہ ورکنگ کر رہی ہیں ان کو فالو کیا جائے، ان کے پروگرامز کو، ان کی ویب سائٹ کو وزٹ کیا جائے، اور سول سوسائٹی نیٹ ورک بھی انشاءاللہ جو ہے اسی نقشے قدم پر آگے ورکنگ کر رہی ہے۔ اور میں امید کرتی ہوں اپنے تمام جو احباب ہیں ان کے لیے کہ دعا گو بھی ہوں کہ وہ اس ورکنگ کو مزید آگے لے کے جائیں، اور بہت ساری جو پروگرامز ہیں جیسے اویئرنیس پروگرامز ہیں، اور دوسرے کانسرٹ میں جیسے کانسرٹ یونیورسٹیز میں ہم نے کام کیا، اس کو لے کے آگے چلیں، اور معاشرے کو جو ہے ڈرگ فری بنایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ویسی صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایک بڑے لیول پہ جو ہے اس کی ورکنگ کو سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ تھینک یو۔ اس کے بعد آج کی تقریب کے ہمارے جو گیسٹ آف آنر ہیں محمد اسلم صاحب، میں ریکویسٹ کروں گا وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ
आपको बात करना तो करो, आप इजाज़त। पानी बस पानी और वो उधर नहीं ठीक है। पिछले वाला चला वो इधर एक ही है और ये हाँ इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। 10 मिनट स्टार्ट हुआ है 2-4 दिन। अच्छा चलो ये तो मेडिटेशन ज़बरदस्त योगा मिल के गई, लिए है। बहुत अच्छी मिल गई आपको, हर एक्टिविटी हो सकती है। हाँ हाँ जी, करें शुरू करें। जी अपने ख्यालात का इज़हार करें मेहमान। Assalamualaikum. First of all, I would like to congratulate Madam Saima Asghar. Being a clinical psychologist, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि एक लेडी होने के साथ उन्होंने ये अवार्ड जो है वो विन किया है और ये अवार्ड एक ऐसी डोमेन में विन किया है जहाँ पर लेडीज़ जो है वो बहुत कम जाती हैं, क्योंकि ड्रग एडिक्शन जो है बेसिकली उसके ट्रीटमेंट पे काम करना और उससे अवार्ड विन करना, तो ये पाकिस्तान के लिए प्राइड की बात है कि उन्होंने एक लेडी के साथ ये अवार्ड विन किया। और इसके अलावा ये है कि ड्रग जो बेसिकली पाकिस्तान में इतनी तेज़ी के साथ फैल रही है, तो हम सब लोग यहाँ पर इसीलिए इकट्ठे हैं कि सब ऑर्गेनाइजेशन, साइकोलॉजिस्ट और सब अफराद मिलकर ये हम अपने पाकिस्तान को ड्रग फ्री सोसाइटी जो है वो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अब मैं ख्यालात का इज़हार करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा आज की हमारी तकरीब के जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं मोहम्मद असलम साहब, कि वो एक तो स्पेशली शुक्रिया भी अदा करते हैं आपका, आप सियालकोट से तशरीफ़ लाए हमारी दावत पे और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। मोहम्मद असलम बिस्मिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र साहब, आपने हमें इज़्ज़त से नवाजा और यहाँ पे अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका भी दिया, और मैं बिल्कुल आपके साथ मिस साइमा असगर को मुबारकबाद देता हूँ। और मैं उस तकरीब में शामिल भी था जब ये पाकिस्तान के लिए अवार्ड अनाउंस हुआ, तो यकीनन हम सब के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि 36 कंट्रीज़ के अंदर हमने ये पाकिस्तान का जो हम मुकाबिज थी उसमें कामयाब हुए। और उसके साथ साथ अकील अवैसी साहब जो सिविल सोसाइटी नेटवर्क के चेयरमैन हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये सारी महफिल सजाई, और डॉक्टर रियाज साहब और बाकी जो टीम है सिविल सोसाइटी की, इन सब का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इज़्ज़त अफजाई की और हमें ये एक यूनिक किस्म का सेंटर भी विज़िट करवाया, जो हमने देखा माशाल्लाह यहाँ पे सर्विसेज बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी कर रहे हैं डॉक्टर ज़फ़र साहब। तो जैसा कि सिविल सोसाइटी का एम है और बाकी हम लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे यूथ फोर्म है या हम क्या नाम है इसका आईसेल काम कर रहे हैं, तो हमारा सबका मिशन एक ही है कि पाकिस्तान को किसी वक्त हम लोग ड्रग फ्री पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो जाएं। तो जहाँ तक सेंटर की बात है, तो सेंटर इतनी मोटिवेशन होनी चाहिए, जितने बड़ी तादाद में मंशियात के आदि बढ़ रहे हैं उस तादाद से ट्रीटमेंट सेंटर नहीं बन रहे, तो ये मज़ीद इसके लिए ज़रूरत है। और जो सेंटर बन रहे हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो करें कि अच्छे से अच्छे जो एक प्रोग्राम में साइमा ने किया था UNODC के साथ, इंटरनेशनल के साथ मिलकर भी क्वालिटी ट्रीटमेंट पे, तो उसको भी उसमें भी देखें, उसको सुनें, जो चीज़ें उसमें भी हैं उसको भी अप्लाई करने की कोशिश करें, ताकि हम बेहतर से बेहतर काम एक दूसरे के मशवरे से कर सकें। तो पहले जो मंशियात के जो मामलात थे उसमें सिर्फ ये होता था कि कोई गली मोहल्ले में या इस तरह से कोई ग्रुप काम कर रहे होते थे। अब सबसे ज़्यादा जो अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारे तालीमी अदारे जो हैं इस मंशियात जैसी बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, और स्टूडेंट को गलत मोटिवेट किया जा रहा है कि ठीक है जी आप लोग आइस नया नशा आ गया कि ये ले लें और बाकी ले लें, इससे एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी होती है, नींद कम आती है। बाज़ जगहों पे तो हमारे सुनने में ये भी आया है कि इससे फिज़िकली फ़िटनेस रहती है। तो ये सब ऐसी नुकसानदेह चीज़ें हैं। जिस तरह वो लोग काम कर रहे हैं या गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, तो हमारा भी काम बनता है कि हम एक अच्छे काज के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, ताकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन से और
लेके आएँ और जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं उनको कोशिश करें कि हम उनके खतरात से इनके जो नुकसान हैं मंशियात के उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दे सकें। जी बहुत शुक्रिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा उमर इजहार साहब से कि ये ज़रा मुख्तसर 1-2 मिनट के लिए बस मुबारकबाद है। अपने मुबारक हो सबको। और मैं तो एडवोकेसी प्रोग्राम कर रहा हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, तो सोशल वर्क की डोमेन में मेरी सर्विसेज हाजिर हैं। मैं वैसे ही साहब के साथ थैंक यू थैंक यू। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे मरकज़ी चेयरमैन अकमल अवैसी साहब से वो ख्यालात का इज़हार करें और एंड पे जो हमारे चीफ गेस्ट हैं फिर उनको दाव दे दें। उससे जी मैं बात करूँ? जी चेयरमैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर रियाज साहब की बात को और डॉक्टर ज़फ़र साहब की बात को आगे लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ मिस सहमा सर को, और वो तशरीफ़ लाए हमारे दावत पे, और उसके साथ साथ असलम साहब का भी बहुत मशहूर कि वो उन्होंने कंपनी की उनको साथ लाए, और नाजिश आपका भी शुक्रिया, मिस नादिया और स्पेशल आपसे पूरा, और मिस नरगिस स्पेशल साहिबाल से तशरीफ़ लाए, मोहम्मद अली। जैसे कि डॉक्टर ज़फ़र साहब ने कहा और डॉक्टर रियाज साहब ने, बड़ा मुश्किल होता है कि एक टीम वर्क काम लेके चलना। ये जो महफ़िल सजी इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसमें मैं अली को अप्रिशिएट करता हूँ, और हमारी एक टीम सोशल मीडिया बैठी हुई हो ऑफिस में, वो मुझे कह रहे हैं जल्दी जो अपनी एक्टिविटी में भेजें, हम आगे उसको चलाएँ। तो मिस सहमा, हमने जब सिविल सोसाइटी स्टार्ट किया 2013 से लेकर अब 10 साल पूरे हो गए। हमारा जो मकसद यही होता है सिविल सोसाइटी का, कोई भी मेल फीमेल अगर उसे कोई अच्छा अवार्ड मिले, अच्छा उसे वो कोई राइटअप मिले या अच्छे प्रोग्राम वो लेके चले, हम अप्रिशिएट करते हैं। उससे लोगों की नज़र में शायद ये होता है कि हम कोई अप्लाई कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि शायद उन्हीं को हम लेके चलना चाहते हैं। एक्चुअली हमारा जो मकसद मेन ये होता है कि लोगों में अवेयरनेस आए, तो लोगों में शौक़ पैदा हो। तो पाकिस्तान में और बहुत सारी ख़वातीन हैं, आपको 50 अभी जो रिपोर्ट आई है, पहले 55 थी और 56-7 ख़वातीन हैं। तो अब बहुत सारी सहमास और भी बने जो अवार्ड लेके आए। तो बल्कि आज जब प्रोग्राम हो रहा था, जब हमने इसको स्टार्ट ले रहे थे, तो इस्लामाबाद से भी और सरगोदे से कुछ लोगों ने कहा जी हम भी प्रोग्राम करना चाहते हैं उनके राज में। तो अब जैसे मरकज़ी बॉडी ने ये प्रोग्राम किया, तो नो डाउट देख लेना आप, बहुत सारे लोग आपके राज में एक्सेप्ट करेंगे। तो उसका मकसद ये हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे नरगिस ने बात की, ख़वातीन आगे बढ़ें, आगे आएँ और काम करें। उसमें ख़ास तौर पर हमने जो 10 साल में ख़ास काम किया मिस सहमा, उसमें ये है कि हम ग्रास रूट लेवल से लेके छोटे शहरों, छोटे कस्बों और बड़े शहरों तक ले गए। हमने सिविल सोसाइटी को ना के बड़े शहरों तक रखा, छोटे देहातों तक भी उनको लेके गए। और आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ख्याल से डॉक्टर रियाज साहब ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया, उसमें जिंदा मिसाल नरगिस है कि ये आज पंजाब की जनरल सेक्रेटरी है। और इसमें ख़ास तौर पर सिविल सोसाइटी में ये कोई नहीं है, कोई अमीर है या गरीब है या किसी की इजारादारी है। मिस नादिया उन्होंने काम किया, न्यू कमर है, अब कोऑर्डिनेटर पंजाब है। और इसी तरह हम चाहते हैं, हमारा भी मेन मकसद है जिसमें आपकी भी जिम्मेदारी में सहमा होती है, असलम साहब आपकी भी जिम्मेदारी होती है, आप लोगों को लेके चलें आगे। देखो ना, एक पौधा लग गया सिविल सोसाइटी का, और हमारा मकसद ये है कि इसको
آگے تک لے کے جائیں. اور جیسے آپ وہاں بات کر رہے تھے باہر بیٹھے ہوئے, اس میں یہ ہے کہ باقی لوگوں کو بھی وسائل دیں کہ جیسے جیسے وہ لوگ آئیں تو وہ آپ کے فالوور ہوں گے نا, وہ آپ کہیں گے یہ جو پروگرام ملا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں آل پاکستان فیڈریشن پنجاب کا چیئرمین تھا تو اس میں بہت ساری خواتین, آپ شاید جانتے ہو, ریلا درانی تھی ہمارے ساتھ, اسپیکر بلوچستان رہی, فردوسہ شکوان تھی, اور گلزار فاطمہ کشمیر سے PM ہے, وہ MLA وہاں کی بنی, اور بہت ساری خواتین, بہت ساری جو ہمارے پارٹ میں رہی ہیں, NGO میں کام کرتی رہی ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ. تو اسی طرح ہمیں یہ کسی اسٹیج پہ بھی نہیں ہے کہ آپ جناب فاؤنڈیشن سے ہیں یا ISAF سے ہیں, آپ پاکستان کی ایک شہری ہیں اور پاکستان کا ایک آپ کی بہت بڑی ذمہ داری پڑتی ہے. اب جو ایوارڈ آپ نے لیا ہے, یہ ایوارڈ آپ صرف سیالکوٹ کی حد تک نہیں ہونا چاہیے, اور یہ ایوارڈ جیسے نرگس نے کہا کہ پاکستان کی خواتین کو ملا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ پہ اب ذمہ داری بڑھ گئی ہے. پہلے تو سیما اصغر ایک ڈائریکٹر ISAF تھی اور جناب فاؤنڈیشن کی ایک جنرل سیکرٹری تھی. اب آپ پہ جب ذمہ داری, جب انہوں نے ISAF میں ابو ظبی میں آپ کو ایوارڈ دیا تو پاکستان کی آپ نمائندگی کر رہی تھی, تو میرے خیال سے اب آپ کے کاندھوں پہ زیادہ بوجھ. میرے خیال ہے اس ایوارڈ کو جگہ جگہ اس کی تقریباً وہ سر میں نے آپ باہر گئے ہوئے تھے, کبھی لاہور کبھی وہ بات ہو چکی ایوارڈ ہے, ساتھ ہونا چاہیے. 2 لوگوں نے تو وعدہ کیا جیسے ہے. ٹرافی کی نہیں وہ کرتے. ہاں جی, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں میں اویئرنیس بڑھے گی, لوگوں میں ایک جذبہ پیدا ہوگا. اسلام آباد کے چیپٹر نے تو وعدہ کیا ہے, اقرا ملک اور ڈاکٹر افتخار نے, اور اسی طرح سرگودا میں ہمارے دوستوں نے, تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد پروگرام رکھ لیتے ہیں. تو میں نے کہا اسٹارٹ ہم نے, جیسے ڈاکٹر ظفر صاحب نے کہا کہ ہم یہ سینٹر بھی آپ لوگوں نے وزٹ کیا, اور 2 دن بعد تو عید کی چھٹی. فرسٹ بندہ وہی بلایا ہے نا, انٹرنیشنل سینٹر ہے اور انٹرنیشنل. ہاں, تو اس طرح ہم یہ سب انٹرنیشنل. جی, تو اس طرح یہ ریکارڈ ہو رہا ہے سر. یہ ایک بڑی ایک اچیومنٹ ہے مس سیما آپ کے لیے. اور دوسری اچیومنٹ جناب فاؤنڈیشن ہو جاتی ہے کہ آپ اس ادارے میں ہیں. تو ہمارے جو سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں, اور اگر اکمل ویسی دے رہا ہے تو تحصیل لیول کا کوئی بندہ پاکستان کا, وہ سارے دے رہے ہیں. کسی بندے نے اس پہ کوئی, ہمارے جو سول سوسائٹی کا گروپ ہے, کسی کو کوئی آبجیکشن بھی نہیں ہے, کسی کو اعتراض بھی نہیں. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. دوبارہ اگین باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں, لمبی تقریر ہو سکتی ہے, بہرحال آپ لوگوں نے بھی جانا ہے, باقی لوگوں نے بھی. تو ہم نے آج کی جو تقریب صرف ایکٹو باڈی کے جو چند لوگ تھے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ہم اس چیز کو بتائیں, کہ لوگوں کو بتائیں, لوگ جو بیٹھے ہیں, کہ سیما اصغر ایک شخصیت ہے, اور سیما اصغر نے یہ کام جو کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دے. بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب, آپ نے تفصیلی روشنی ڈالی اور باقی لوگوں نے بھی. اب میں آخر میں ہماری جو آج کے اس پروگرام کی تقریب کی مہمان خصوصی ہیں, اور جن کے اعزاز میں یہ تقریب کا اہتمام کیا گیا سول سوسائٹی نیٹ ورک پاکستان کی طرف سے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گلوبل گروپ آف انسٹیٹیوشنز اینڈ گریس انٹرنیشنل ریہیب اینڈ ویلنس سینٹر کی جانب سے. تو میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے آج کی مہمان خصوصی سائمہ اصغر صاحبہ سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں آج کی اس ایونٹ کے حوالے سے اور اپنے ایوارڈ کے حوالے سے, اور انہوں نے کیسا فیل کیا, اور یہ آگے ان کا کیا ویژن ہے, اور ہم ان سے کیا لرن کر سکتے ہیں. تو ریکویسٹ کروں گا سائمہ اصغر صاحبہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, on behalf of ISAF Pakistan chapter and myself, I'm truly thankful to all civil society network, especially Chairman Akmal Waisi Sahab, Central Chairman Dr. Zafar Iqbal Sahab, Dr. Riyaz Sahab, General Secretary Ms. Nadia Zulfikar, Ms. Nazish, and all the members who are present here. I'm truly thankful for the acknowledgement اور اس آنر کے لیے کہ جو مجھے ایوارڈ ملا.
आईएसएफ पाकिस्तान आईएसएफ ग्लोबल की तरफ से अबू धाबी में। उस मकसद के लिए जो इन्होंने इस तकरीब का इनेकाद किया, यहाँ पे मुनक़्क़द की और हमें दावत दी। और स्पेशली ये इसका मकसद जैसा कि हमारे बाकी जो हमारे मेज़बान हैं उन्होंने बताया कि ये इसका मकसद एप्रिसिएशन है और एक्नॉलेजमेंट है। तो यकीनन इनके वर्ड्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। काम करते हुए इंसान बहुत ज़्यादा जब थक जाता है तो यही चीज़ें होती हैं, यही वर्ड्स होते हैं हमारे लोग जो हमारी फील्ड से रिलेटेड हैं और जो हमारे अप्रिसिएशन हमें करती हैं, वो उनकी जो वर्डिंग से हम दोबारा बूस्टअप होती है हमारी एनर्जी और यकीनन हम नए इनिशिएटिव्स लेने में कामयाब होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अवार्ड के बारे में शेयर करती चलूँ कि आईएसएफ ग्लोबल की तरफ से जो मुझे अवार्ड मिला है वो यकीनन ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का अवार्ड नहीं है, ये पाकिस्तान को मिला है। वहाँ पे जब हम लोग किसी भी कॉन्फ्रेंस में, किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसका मकसद ये नहीं होता कि वहाँ पे हम एज इंडिविजुअल गए हैं। वहाँ पे हम बतौर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं और जितनी भी वहाँ से एक्नॉलेजमेंट, एप्रिसिएशन या अवार्ड होता है वो पूरे पाकिस्तान के लिए होता है और वो एक मिसाल होती है। दूसरे लोग जो यहाँ पे सुन रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन होती है। और जो मुझे अवार्ड मिला है मैं ये समझती हूँ कि ये मेरा अकेली का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं था। जितने भी हमारे आईएसएफ के मेंबर्स हैं और सिविल सोसाइटी के लोग सब आईएसएफ के मेंबर्स हैं और हमारे जितने भी लोग फील्ड में प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं उन सब की जो एफ़र्ट्स थी, कंट्रीब्यूशन था, जिसकी वजह से हम लोगों ने पाकिस्तान में ड्रग ट्रीटमेंट प्रिवेंशन फील्ड में सर्विसेज दी और उनको इंटरनेशनल लेवल पे एक्नॉलेज किया गया। तो इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे आईएसएफ और सिविल सोसाइटी दोनों अपनी अपनी डोमेन्स में काम कर रहे हैं, दोनों का मकसद है पाकिस्तान को मंशियात से फ्री बनाना और इसके लिए अपनी अपनी जगह पे हम लोग इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन वी ऑल आर यूनाइटेड फॉर द सेम मिशन और हम लोग एक मिशन पे काम कर रहे हैं। और इस मकसद के लिए मैं अपने प्रेसिडेंट जो हैं आईएसएफ पाकिस्तान उनसे भी शेयर करूंगी। कुछ कंसर्न थे हमारे, जो रिजर्वेशन थी हमारी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की। इनफैक्ट हम दो ऑर्गेनाइजेशन नहीं हैं, हम सब इकट्ठे हैं। आईएसएफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं अकमल वैसी साहब और आप साहब और हम भी सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं और मकसद भी हमारा एक है। तो जो कंसर्न और रिजर्वेशन थी हमारी बड़ी हेल्दी और प्रोडक्टिव डिस्कशन हुई है। जो चीज़ें हम अपने बोर्ड के साथ उसके बाद शेयर करेंगे और उनको लेके कुछ जॉइंट इनिशिएटिव लेने में कामयाब हो सकेंगे। तो वंस अगेन सिविल सोसाइटी का और अकमल वैसी साहब का, डॉक्टर ज़फ़र साहब का, डॉक्टर रियाज साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतनी पुरवकार, इतने शार्ट नोटिस में इतनी पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, मुझे जो इज़्ज़त बख्शी है मैं हमेशा इसको याद रखूँगी। और इसका मकसद भी यही है इससे कि अपनी एनर्जी को मज़ीद बूस्टअप करना और ताकि हम लोग अपनी फ़ील्ड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, ज़्यादा सर्विसेज जो हैं और फोकस जो है जैसे सिविल सोसाइटी ये पाकिस्तान का फोकस ही है कि और आईएसएफ पाकिस्तान का भी यही मिशन है कि हमने एविडेंस बेस्ड सर्विसेज को प्रमोट करना है। सिर्फ सर्विसेज काफ़ी नहीं है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ट्रीटमेंट पॉलिसी नहीं है। तो जो भी हमने इंटरनेशनल लेवल से ट्रेनिंग्स ली हैं, चाहे वो यूएनओडीसी के थ्रू हों, कोलंबो प्लान के थ्रू हों, आईएसएफ की हों, उन सारा जो नॉलेज हमने गेन किया उसको शेयर करना है। जो अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेशनल लेवल से हमें मिलती हैं उनको आगे फर्दर शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें और अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें उन सारे नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकें और अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकें ताकि जितने भी लोग मंशियात के आदी मरीज़ हैं वो किसी भी वजह से मंशियात के अगर आदी हुए, इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं तो उनको एक ऐसा क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके ताकि उनके रिलैप्स को जो परसेंटेज है और रिलैप्स के जो चांसेस हैं उनको कम से कम किया जा सके और रिकवरी का जो पीरियड है उसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म बनाया जा सके। और साथ ही साथ जैसे असलम साहब ने, डॉक्टर रियाज साहब ने बात की, ज़फ़र साहब ने भी, चेयरमैन साहब ने भी, कि हमें स्कूल और कॉलेजेस को फोकस करना है। ड्रग ट्रीटमेंट जो ड्रग एडिक्शन है इसकी अवेयरनेस पे इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इस पर प्रिवेंशन पे इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि ये जो हमारा नेटवर्क है ये लगता है कि छोटा है। जितने जल्दी और जितनी तेज़ी से मंशियात के लोग आदी हो रहे हैं, स्पेसिफ़िकली यूथ जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रही है,
तो इस पे मैं दूसरे लोगों को भी दावत दूंगी कि वो सिविल सोसाइटी का हिस्सा बने, आईएसएफ का हिस्सा बने, और स्पेशली आईएसएफ की वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी लेटेस्ट रिसर्च अपडेट्स वहाँ पे मौजूद हैं, ट्रेनिंग मटेरियल वहाँ पर है जो वो खुद घर बैठे भी लर्न कर सकते हैं और उसको फर्दर शेयर भी कर सकते हैं। तो जितना भी हम लोग इस फील्ड में काम करें, मेरे ख्याल से वो कम है, तो इससे बेहतर है कि हम सब लोग मिल के और जॉइंट इनिशिएटिव्स लें, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी इसके लिए मोटिवेट करें ताकि वो भी इसमें सर्व कर सकें। तो वंस अगेन सिविल सोसाइटी नेटवर्क पाकिस्तान का, मतलब वैसी साहब का, डॉक्टर जफ़र साहब का और डॉक्टर रियाज साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतनी इज़्ज़त अफजाई के लिए यहाँ पे दावत दी, और आई एम रियली अप्रिशिएट मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने मतलब मुझे लगता है कि वर्ड्स कम पड़ रहे हैं जितना उन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स, और यहाँ पे बुला के जो मुझे आई रियली फील प्राउड कि मैं इनका हिस्सा हूँ, सिविल सोसाइटी का हिस्सा हूँ, और ये सब भी आईएसएफ के मेंबर्स हैं और हम सब यूनाइटेड हैं। थैंक यू सो मच। इस्लामाबाद के लिए अगर टाइम देना पड़ा तो थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी हेल्दी गुफ्तगू की और उसमें सारे टॉपिक और चीज़ों को कवर किया। तो आज का मकसद यही था कि इस तरह और लोगों को मोटिवेशन भी मिले, और आपको भी इससे यकीनन एक मोटिवेशन मिलेगी। आपकी जो एफ़र्ट्स हैं और आगे मज़ीद लर्निंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा जब इसकी रिकग्नाइजेशन सोसाइटी में होगी। तो हम सब आपको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम भी करते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ गो भी हैं कि जो ये मिशन था, जो काज थी, जिसके लिए हम सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं और आपको ये अवार्ड इंटरनेशनल मिला, उसमें इसी तरह आपको कामयाबियाँ मिलती रहें और आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल के तौर पे अपना कैरियर आगे बढ़ा सकें। और यही हमारी सब की नेक तमन्नाएँ आपके साथ हैं। तो आज की इसकी तकरीब का भी हम एंड करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, सिविल सोसाइटी आईएसएफ जिंदाबाद। जिंदाबाद। अभी 5 मिनट